السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ضیاء ٹی وی کے ناظرین، آج ہم آپ کے لیے خوبصورت تحفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ سید جمال الدین دانا علیہ رحمت و رضوان، جنہیں شہنشاہ سورت یعنی سورت شہر کا شہنشاہ کہا جاتا ہے، اور یقیناً آپ کی ذات پاک اس قابل ہے کہ انہیں سورت شہر کا شہنشاہ قرار دیا جائے۔ انہی کے مزار اقدس کے بلند دروازے کے باہر ہم کھڑے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہم اندر داخل ہوں گے اور آپ کے مزار پن انوار کا گنبد شریف اور آپ کے مزار اطہر کی زیارت سے ہم اور آپ لوگوں کو روشناس کرائیں گے۔ اس وقت ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اس دروازے کے اوپری حصے پر آپ فارسی زبان میں کندہ ایک شعر دیکھ رہے ہوں گے، جس پر لکھا ہوا ہے کرد تحریر مصور قدرت بعد آباد بندر صورت۔ یہ فارسی زبان کا شعر حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ نے صدیوں پہلے اس شہر کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ شہر صورت ہمیشہ شاد رہے گا، آباد رہے گا۔ ہم سالوں سے اس شہر کی یہ حالت دیکھتے آئے ہیں کہ اس شہر پر حالات کی بڑی ساری آندھیاں آئی اور گئیں، لیکن یہ شہر اسی آن بان شان اور آب و تاب کے ساتھ دوبارہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ یہ حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی برکت اور آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ آئیے ان کے روضہ اطہر کی زیارت کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت ہم بلند دروازے سے داخل ہو کر مزار کے احاطے میں آ گئے ہیں۔ آپ کو میرے عقب میں یعنی میرے پچھلے حصے میں حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار کا حصہ نظر آ رہا ہوگا، اور آپ کا مبارک مسعود خوبصورت سا گنبد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ آپ حضرات ان کے گنبد کی زیارت کرتے رہیں۔ حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف یعنی ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ انہیں سماعت کرتے رہیں۔ تو آئیے ناظرین، حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات اور آپ کی زندگی پر مختصر سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جنم یعنی آپ کی ولادت خراسان کی سرزمین پر واقع ہوئی۔ حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کے والد ہیں، ان کے گھر جب حضرت خواجہ دانا کا جب جنم ہوا تو آپ کا نام آپ نے جمال الدین رکھا۔ جمال الدین نام رکھنے کے 3 روز کے بعد آپ کے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سرکار نے حضرت سید بادشاہ پردہ پوش سے فرمایا، اے میرے بیٹے، تیرے گھر جو صاحبزادہ آیا ہے اس کے نام میں جمال الدین کے ساتھ دانا کے لفظ کا اضافہ کر دے، کیونکہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے نہایت دانا اور بینا بننے والا ہے، اللہ کا مقدس ولی بننے والا ہے اور بڑی بزرگی اور کمال کو پہنچنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ کا نام جمال الدین دانا رکھ دیا گیا۔ ابھی آپ دودھ پینے کی عمر میں ہی تھے کہ اسی زمانے میں آپ کے والد حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمۃ اللہ علیہ ایک مقدس ولی تھے اور آپ کے مریدین کا ایک حلقہ تھا۔ آپ کے مریدوں میں خاص مرید حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت خواجہ حسن عطا سے خواب میں آ کر حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اور میرے بیٹے دانا کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری ادا کرو۔ آپ اشارہ سمجھ گئے کہ شاید آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ جب حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی والدہ محترمہ جو تھی یقیناً ان کا وصال ہو چکا ہے۔ اب خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر جو ہے وہ دودھ پینے کی ہے، اور والد بھی گزر چکے ہیں، والدہ بھی گزر چکی ہیں۔ حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کی تربیت بھی کرنی ہے، آپ کی پرورش بھی کرنی ہے، اور آپ کو روحانی مراحل سے گزارنا بھی ہے۔ لیکن اس وقت آپ کے نزدیک جو سب سے بڑا چیلنج ہے اور سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے، شیر خوارگی کے عالم میں بچے کے دودھ کا انتظام کیسے ہوگا؟ مورخین نے لکھا ہے بڑی خوبصورت سی روایت، حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دودھ پینے کے زمانے میں آپ کے دودھ پلانے کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا کہ ایک ہرنی ہر روز جنگل سے آ جاتی اور حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دودھ پلا کر کے لوٹ جاتی۔ حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ آپ کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبصورت سا انتظام فرمایا ہے۔ اس طرح سے آپ کی پرورش ہونے لگی اور آپ اپنی زندگی کے اگلے مرحلوں کو پار کرنے لگے۔ اب ہم آگے کی بات پیش کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب سورت کی سرزمین پر قدم رکھا، یہ بہت بات کی باتیں ہیں، بلخ شہر سے ہوتے ہوئے آپ ہندوستان کی طرف بڑھے۔ اس وقت ہندوستان میں شہنشاہ اکبر کا راج ہوا کرتا تھا۔ آگرہ آپ کی آمد ہوئی، اس کے بعد برہان پور آپ گئے، اور برہان پور سے گزرتے ہوئے خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس عظیم شہر سورت میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ مقدس شہر میں آپ نے ہمیشہ کے لیے سکونت اختیار فرما لی، اور یہاں پر آپ نے علم و فضل اور اپنے کمال کا جادو جلایا، اور یہاں آ کر کے آپ نے ایک مدرسے کا قیام بھی کیا۔ یہاں پر آپ نے اپنی خانقاہ کی تعمیر بھی فرمائی۔ آپ کی خانقاہ کی تعمیر کا بھی ایک واقعہ بڑا دلچسپ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی خانقاہ کی تعمیر کرنا شروع فرمائی تو بتایا جاتا ہے کہ رات میں حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
इमारत का वो हिस्सा जो तामीर हो जाता था अपने हाथों से गिरा देते थे और दोबारा सुबह को मजदूर को कहते थे कि फिर से इस हिस्से की तामीर करें। लोगों ने पूछा कि ये क्या मामला है कि दिन भर लोग काम करते हैं और रात को बनी हुई इमारत को आप गिरा देते हैं। ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह ताला ने जवाब दिया, इस अमल का मतलब ये है कि लोगों की रोज़ी रोटी ज़्यादा दिनों तक चलती रहे, मज़दूरों को बहुत लंबे वक्त तक रोज़गार मिलता रहे, इसलिए मैं इस काम को अंजाम देता हूँ। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह उस रकम को यूँ ही सदका व खैरात भी कर सकते थे, लेकिन आपने जो तरीक़ा इख्तियार किया उसने हमें यह सबक दिया कि सदका व खैरात करने से कभी गुर्बत ख़त्म नहीं होगी, बल्कि गुर्बत का ख़ात्मा तब होगा जब इंसानों के अंदर इस बात को पैदा किया जाए कि वो रोज़ी रोटी कमाने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करें, अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और अपने रिज़्क़ को कमा करके हासिल करें। तो मुबारक ज़िंदगी हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह की है। बहुत सारी बातें हैं, हम एक खूबसूरत सा वाक़या जो आपकी ज़िंदगी का है और करामत है आपकी, उसको पेश करके अपनी गुफ्तगू को तमाम करने की कोशिश करते हैं। हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह सूरत की सरज़मीन पर रहते थे और करीब के शहर बुरहानपुर के अंदर शहनशाह अकबर का एक बेटा रहता था जिसका नाम दानियाल था। दानियाल के घर एक बच्चा तवल्लुद हुआ जिसका नाम तैमूर था। 3 रोज़ के बाद उस बच्चे का इंतकाल हो गया। पूरे शहर में कोहराम समझ गया कि बादशाह ज़्यादा जो है वो दुनिया से रुखसत हो गया है। हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख़बर दी गई। आपने फरमाया बादशाह से कहो कि बच्चे को अभी दफन न करे, मैं पहुँच रहा हूँ। ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह बुरहानपुर तशरीफ़ ले गए और आपने अपने उस बच्चे को उठाकर गोद में लिया, सीने से लगाया। आपके सीने से लगाने की बरकत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को फिर से ज़िंदगी अता फरमा दी और वो बच्चा दोबारा ज़िंदा हो गया। ये खूबसूरत वाक़या हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। इस शहर में आपने बड़ी खिदमत अंजाम दी। इस शहर में जो भी इल्म का उजाला है वो आप ही की वजह से फैला हुआ है। इस शहर के जो कुछ भी हम इज़्ज़तें देख रहे हैं इस शहर की, वो सब हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों की बरकत है। 3 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को और 4 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को आपके उर्स और आपके संदल की खूबसूरत महफ़िल यहाँ मुनाक़िद होती है। हज़ारों की तादाद में दूर दराज से ज़ायरीन तशरीफ़ लाते हैं, हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस की ज़ियारत करते हैं, आपके मज़ार पुर अनवार पर हाज़िर होकर फ़ातिहा ख़वानी करते हैं। यहाँ के जो अराकीन हैं, सज्जादगान हैं, उन लोगों की खिदमतों को आप दाद दीजिए कि बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में इतनी बड़ी महफ़िल को संभालते हैं और हर साल बड़े अच्छे अंदाज़ में उर्स शरीफ का यहाँ पर एहतमाम होता चला आया है। हम उन तमाम लोगों को जो यहाँ के अराकीन हैं, यहाँ के कारगुज़ार हैं, खिदमत गुज़ार हैं, उन तमाम को सलाम मोहब्बत पेश करते हैं और हम उन तमाम को अक़ीदत का सलाम पेश करते हैं कि इतने खूबसूरत इंतज़ामात के साथ सालों साल से इस शहर के अज़ीम दरगाह के अंदर इंतज़ामात को संभाल रहे हैं। इस वक्त हम हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पाक के इहाते में जो बुलंद तनीर मीनार है उस मीनार पर पहुँचे हुए हैं। सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं इसलिए कुछ हमारी सांस भी चढ़ी हुई है। यहाँ से आप हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक के खूबसूरत मंज़र का जो नज़ारा है उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। नीचे ज़ायरीन की भीड़ भाड़ है, अभी आपको दिखाया जाएगा। और दूसरी बात कि आप शहर सूरत का खूबसूरत नज़ारा यहाँ से कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ जो हम यहाँ खड़े होकर के महसूस कर रहे हैं वो ये है कि शहर के हर चहार जानिब से सदाए तकबीर बुलंद हो रही है, हर तरफ से अज़ान की आवाज़ें आ रही हैं। अभी हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह के मस्जिद में, जो कि यहाँ की शाही मस्जिद है, उसमें भी अज़ान हुई है, हमने अभी अज़ान समाअत की। लेकिन दूर दराज की मसाजिद से हमें अज़ान की आवाज़ें मुसलसल आ रही हैं और चप्पे चप्पे से खुदावंद कुद्दूस की तकबीर बुलंद की जा रही है। ये खूबसूरत शहर है जिसका नज़ारा आप हज़रात कर रहे हैं। चूँकि सूरज ढल चुका है इसलिए जो मंज़र है वो इतना सुथरा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये अज़ीमुश्शान शहर हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों की बरकत से इसको ऐसी खुशहाली नसीब हुई है कि ये बरसों से, सदियों से शाद व आबाद है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों की बरकत से इस शहर को हमेशा ताबिंदा रखे, चमकता रखे, खूबसूरत रखे, ताबनाक रखे। नाज़रीन, आपने हमेशा सुना होगा कि बुज़ुर्गों के दरबारों से लंगर का इंतज़ाम होता है और तमाम वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं बुज़ुर्गों के दरबार में आते हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गनी बनाया है, वो भी आते हैं अब बुज़ुर्गों के दरबार में आकर तबर्रुक लेते हैं। तो इसी तरह हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह के दरबार अक़दस में असर की नमाज के बाद इस तबर्रुक का इंतज़ाम किया जाता है। आप देखते हैं ये तमाम लोग तबर्रुक हासिल करने के लिए कतार में खड़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सबको बरकतें अता फरमाए। हम आपको हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह के मौजूदा सज्जादा नशीन और नाइब सज्जादा से मुलाकात कराते हैं। कैमरा इस तरफ घुमाइएगा। ये सबसे पहले बैठे हुए हैं सज्जादा नशीन
नशीन हज़रत मीर सैयद फ़िरोज़ इब्न इब्राहिम बाबा, उनके बाजू में तशरीफ़ रखते हैं नाइब सज्जादा नशीन सैयद बुरहानुद्दीन उर्फ़ फैसल बाबा। हज़रत ये बताइए, हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुताल्लिक़ या उनके हवाले से कोई पैगाम आप देना चाहें या उनके मुताल्लिक़ कुछ बताना चाहें? आज सरकार का 425वां उर्स मुबारक शुरू होने वाला है। पहले चांद असर की नमाज के बाद परचम कुशाई होती है, जो मोमनावार से लाई जाती है, ख्वाजा साहब के गुम्बद शरीफ पर पेश की जाएगी बुलंद दरवाजे के ऊपर। और दूसरे चांद मगरिब की नमाज के बाद नियाज रखी गई है तमाम आम लोगों के लिए, और इसमें साहिब सज्जादा नसीन की जानिब सैयद मीर फ़िरोज़ इब्राहिम साहब की जानिब से ये लंगर खाना शुरू किया गया है। और इशा की नमाज के बाद गुसल शरीफ का प्रोग्राम है दूसरे चांद। और तीसरे चांद सरकार का संदल शरीफ है, जो रात में 10 बजे चढ़ाया जाता है। उस वक्त तमाम खानका के जो सज्जादा है सैयद मीर फ़िरोज़ इब्राहिम साहब और दूसरे खानका के चाहने वाले लोग हैं, मानने वाले मुरीदीन हजरात और तमाम ही हजरात हमारे घर से जो संदल शरीफ लाते हैं सरकार की चौखट तक आता है। उस वक्त 4 करामतें होती है। पहली करामत ऐसी है सरकार की कि साहिब सज्जादा नसीन जब चौखट पे कदम रखते हैं, दरवाज़ा शरीफ है उसे लॉक कर दिया जाता है, संदल शरीफ हमारे सरों पर होता है। और करामत ऐसी होती है कि जो लॉक किया हुआ दरवाज़ा होता है वो अपना आप खुल जाता है। और दूसरी करामत ये है कि सरकार के गुंबद के ऊपर एक पंजा मुबारक रखा गया है, वो पंजा शरीफ 3 मरतबा सलामी भरता है। और तीसरी करामत यह है कि सरकार में जो वज़ू का हौज है, जहाँ पर रोज़ाना लोग नमाज के लिए वज़ू करते हैं, वो हौज का पानी इस तरीके से उछलता है जिस तरीके से नहर आती है। और चौथी करामत ये है कि जो सरकार का पिंजरा मुबारक है, 425 साल हो गए उस पिंजरे को, जिसे सरकार ने और आपके पीर मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद हसन अता ने अपने हाथों से बनाया था, वो पिंजरा आज भी मौजूद है। और इसकी करामत ये है कि ये अपनी जगह से हट जाता है। और चौथे चांद रात में 2 बजे खिचड़ी पर फातिहा दिया जाता है। उस खिचड़ी को खाने से लोगों की बीमारियां दूर हो जाती है। सांप बिच्छू वगैरह कुछ भी जहरीली चीज़ काट खाए तो वो जहर चला जाता है। और रात में 4 बजे बतासे पर फातिहा दिया जाता है, जिससे खाने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है लेडीज़ को। और ऐसी तो सरकार की बहुत सी करामतें हैं, जैसे कि ये हज़रत आए हुए हैं, इन हज़रत ने बयान भी किया है, उसे आप सुनिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। और हमारी जानिब से मौलाना राशिद ज़िया साहब को हमारी खानका की जानिब से सज्जादा नसीन की जानिब से ये दावतनामा दिया जाता है। आप भी तशरीफ़ लाइए और तमाम ही चाहने वाले, चैनल के चाहने वाले, सरकार के चाहने वाले भी तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लोगों ने देखा कि बुजुर्गों के ख़ानदान के लोग कैसे होते हैं, किस अक़ीदत व मोहब्बत से इन्होंने हमें मोहब्बतों से नवाजा। आप हज़रात ने उसकी ज़ियारत की और उन तमाम मराहिल को आपने देखा। हम भी इनके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने हमें मदऊ किया और हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह ताला अलैह के और उसके मौके पर जो रसूमात अदा की जाती है उनमें हमें इन्वाइट किया, और हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। उन तमाम लोगों के भी शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने यहाँ पर हमें रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त दी और हमारे साथ कोऑपरेट किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सबको अपने फजल व करम से नवाजे। ख्वाजा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर पाक का सदका अता फरमा।